Hello, friends. I am Dr. Harsh Agarwal. I want to thank you for the immense response that I have been given on Facebook after our interaction on piles. Now, I have been flooded with questions regarding piles, its management, the causes, and whatnot. But one of the most striking questions that has come most commonly to me is क्या पाइल्स का इलाज दवाइयों से हो सकता है? Now, my dear friends, I take this opportunity to explain my answer. I am not telling you हो सकता है कि नहीं. Let us discuss this subject and then I leave it to you to decide whether medicines or any other management should be done for piles. Now, what are piles? Piles are basically vascular tissue. Now, what does vascular tissue mean? Vascular tissue means a substance made out of blood vessels, arteries, veins, and certain other body tissues. I am talking in very layman's. Do not challenge me in medical language, please. I am just trying to explain it to my friends who are not doctors. Now, piles are present in everyone. I have mentioned this before. Piles are present in everyone. They are a part of our normal anatomy. हमारी बनावट का नॉर्मल हिस्सा होता है पाइल्स. और पाइल्स एक तरह की खून की नसें या खून के छोटे छोटे गुब्बारे हैं जो हमारे मल द्वार में पाए जाते हैं. मैंने आपको ये समझाने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया. दिस मॉडल शोज अ कट सेक्शन ऑफ द एनल कैनाल. These are the buttocks and this is the anal opening. And where are the piles? These are the piles. The one painted in blue are the piles. And this distance, if you measure this distance, this is approximately 6 to 7 centimeters. Now these are piles. These are piles which are normal. This is a normal anatomy and these are piles which are present in each and every one of us. Even starting from a newborn to an old man of 100 years, this would be present in each one of us. Then why is it a disease? It is a disease only when this enlarges in size. Now if this pile was to come down till here, it would still be only grade 1 piles. If it comes out but goes back in after passing stools, then it is grade 2. If it comes out and has to be pushed inside, it is grade 3. And if these piles they come out and stay outside, cannot be pushed back inside, as happens in thrombosis. Thrombosis means जब खून इसमें बवासीर में जम जाए, वो grade 4 होती है. So these are the grading of piles. Now tell me something, that these piles, when they come down right up to here, we still call it grade 1. और इस पाइल का लक्षण क्या है? जब स्टूल पास होगा, ये पाइल सिर्फ यहाँ पे नहीं है. ये पाइल्स हमारे 6 जगह पे होती है मल द्वार में. अगर मल द्वार का ज्यादातर रास्ता बवासीर ऑक्यूपाई कर लेगी तो स्टूल को पास करने के लिए जो जगह है वो कहां से मिलेगी? एंड इवन दैट इज द रीजन व्हाई वेदर इट इज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और ग्रेड 3, द पाइल वुड गेट इंजर्ड. जो मैंने बताया कि पाइल्स क्या है? पाइल्स इज नथिंग बट एक खून का गुब्बारा. जब वो बढ़ जाता है तो हम उसको हीमोरॉइड्स कहते हैं या खूनी बवासीर कहते हैं. अब कोई भी खून का गुब्बारा हमारे मल द्वार में है, ग्रेडिंग को भूल जाओ. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 सिर्फ उसके साइज पे डिपेंड करता है. एक खून का गुब्बारा है जिसके ऊपर जब आप स्टूल पास करते हैं, जब उससे रगड़ लगती है, वो खून का गुब्बारा फट जाता है. और अगर खून का गुब्बारा फटेगा तो ब्लीडिंग होगी. ना एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मल द्वार में एक लाइन होती है जिसे डेंटेट लाइन कहते हैं. ये तकरीबन मल द्वार से 4 सेंटीमीटर्स ऊपर होती है. डेंटेट लाइन के ऊपर दर्द नहीं होता, डेंटेट लाइन के नीचे दर्द होता है. तो अगर ग्रेड 1 पाइल्स में से ब्लीडिंग होगी तो वो पूरी तरह से पेनलेस होगी. अब पेनलेस ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ पाइल्स. अब होता क्या है कि जैसे ही किसी को बवासीर के बगैर भी ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग के जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अनेकों कारण है. अब किसी भी वजह से ब्लीडिंग होती है. अच्छा, एक चीज जो मैं बता रहा हूं बार बार कि बवासीर में दर्द नहीं होता, हो सकता है लेकिन सिर्फ स्टेज 4 में दर्द होगा.
खारिश हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन दर्द नहीं होगा जब तक स्टेज 4 नहीं होती, जब तक बवासीर में ब्लड नहीं जमता। अब बवासीर को ग्रेड 1 से ग्रेड 4 पहुंचाने तक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ग्रेड 1 अगर बवासीर हो चुकी है तो आप जो मर्जी कर लीजिए, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ये कहती है कि पाइल्स वुड नेवर रिग्रेस। हम इलाज किस चीज का करना चाहते हैं भाइयों? हमें इलाज करना है बीमारी का या लक्षणों का। मेरे घर में हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर बाद मच्छर आ रहा है, मैं मच्छर के पीछे भाग के मच्छर को मार रहा हूं। उससे बेटर है कि अगर मुझे पता चल जाए किस खिड़की में से मच्छर आ रहा है, मैं वो खिड़की को बंद कर दूं। हम लक्षणों का इलाज करना चाहते हैं। हमें ब्लीडिंग हो रही है, हम ब्लीडिंग बंद करना चाहते हैं, ब्लीडिंग बंद हो गई, हम खुश हो गए। हमें ये नहीं पता कि अंदर जो खून का गुब्बारा है वो साइज में बढ़ता जा रहा है, और जब अगली बार ब्लीडिंग होगी वो पहले से बहुत ज्यादा वर्स होगी। दूसरी बात, थोड़ी 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 ब्लीडिंग कई बार होती रहेगी जो हमें पता भी नहीं चलेगा। पता चला 6 महीने के बाद आप अपना हीमोग्लोबिन लेवल्स कराएं, बहुत कम है। हीमोग्लोबिन लेवल्स अगर कम होंगे, आपके हार्ट पे, लंग्स पे, ब्रेन पे, बॉडी के हर ऑर्गन पे असर होगा। लेकिन हम खुश हैं इस बात से कि हाँ हमारी ब्लीडिंग बंद हो गई, बगैर किसी दवा लिए। अगर आप सिर्फ एक स्टूल सॉफ्टनर ले लेते हैं, एक लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। हाँ, कुछ दवाइयां हैं जो बवासीर के गुब्बारे की दीवार को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिसे फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, या सोजिश को कम करती है, जिसे हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयां जो हैं, ये सारी दवाइयां सिर्फ हमारे लक्षणों को खत्म करेंगी, बीमारियों को नहीं। तो करना क्या है? जो आपके लक्षण है, पहले लक्षणों को के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, पता करिए बवासीर है कि नहीं। कितनी बीमारियां हैं जो बवासीर से बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, और उन बीमारियों को प्रोलॉन्ग करना। अब ठीक है, बवासीर ब्लीड नहीं कर रहा, आप थोड़ी देर के लिए, कोई पैनिक नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको उसको इलाज करवाना है। लेकिन बीमारियों से आप सिर्फ लक्षणों को ही ट्रीट कर सकते हैं, आप बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते। कोई बीमारी नहीं है। आई एम नॉट चैलेंजिंग माई फ्रेंड्स हु आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा और दे आर प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। मैं अपने एलोपैथिक सिस्टम के बारे में जानता हूं कि एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जो बवासीर को रिग्रेस करा दे या जो बवासीर को खत्म कर दे। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि जब हम किसी भी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो क्या वो एग्जामिन करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या हाँ जी ये बवासीर है, ये ट्यूमर नहीं है, ये पॉलिप नहीं है, ये अल्सर नहीं है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नहीं है, ये फिशर नहीं है। बस जहां आपने बताया कि जी बवासीर, खून आ रहा है या दर्द हो रहा है, तो उसी तरह की दवाइयां हर मर्ज के लिए तो नहीं हो सकती। अगर बीमारी डिफरेंट है तो दवा भी डिफरेंट होगी, सर्जरी भी डिफरेंट होगी। तो भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये है कि आप डरिए मत। सबसे पहले यू नीड टू गेट एग्जामिन्ड। और एक सिंपल सा प्रोक्टोस्कोप, ये इतना सी ट्यूब होती है जिसको जो हम यूज करते हैं, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी कहते हैं। ये मलद्वार में यहाँ से क्रीम लगा के ये जाता है और ये अंदर का सारा व्यू हमें वीडियो पे दिखा देता है, सिंपल सा 30 सेकेंड्स के अंदर। और इसमें कोई एम्बैरेसमेंट होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन बवासीर कोई मजाक का विषय नहीं है। बवासीर को सीरियसली लीजिए। और अगर बवासीर है किसी को, उसमें शर्म क्या? हमारी बॉडी का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जिसका साइज बढ़ गया, बस इतनी सी तो बात है। मैं फिर कह रहा हूं, बवासीर हर किसी में होती है, हम पैदाइश से बवासीर होती है, क्योंकि बवासीर इस खून की नसों को कहते हैं। जब ये बढ़ जाती है तो ये दिक्कत देने लगती है। तो शर्म किस बात की? और दूसरी बात, कोई भी दवा लेने, अब बवासीर नहीं है, भगवान ना करे, ये इतनी सारी बीमारियां हैं, फिस्चुला है, पॉलिप्स है, अल्सर्स है, कितनी सारी बीमारियां जिसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, पेनलेस ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब आपने बताई इनकम्प्लीट हिस्ट्री और आपने कहा कि ठीक है जी मुझे डर लगता है, मैं एग्जामिन नहीं कराता। एग्जामिन आपने कराया नहीं, बवासीर के अलावा कोई और बीमारी बढ़ गई, लक्षण आपके ठीक हो गए और बीमारी आपकी बढ़ती रही। 2 साल के बाद जो बीमारी का पूरी तरह से इलाज हो सकता था, वो बीमारी जो है वो लाइलाज हो जाए। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट गेट एग्जामिन्ड फर्स्ट। एंड सिंपल सा एक प्रोक्टोस्कोपी, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी हो जाए तो और बेटर है। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं जब मैं वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करता हूं, कैसे वो रिकॉर्डेड होती है। ये इस पेशेंट
एक पेशेंट की मैंने उनसे परमिशन लेके मैं आपको ये, अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये जब शुरुआत करते हैं तो ये व्यू आता है जब हम पहले प्रोक्टोस्कोप को यहाँ अंदर तक डाल दें। यहाँ पे जब हमने डाल दिया तो ये हमें व्यू आएगा, और उसके बाद हम प्रोक्टोस्कोप को नीचे विड्रॉ करते हुए ये रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आप इसको देखिए, ये 1 मिनट की क्लिप है, ये हम अंदर से बाहर आ रहे हैं। ये नॉर्मल रेक्टल म्यूकोजा है, हम कुछ पर्पल रंग की चीज को ढूंढ रहे हैं। जब आप देखेंगे अगर बवासीर होगी तो आपको क्लियरली ये देखिए आप पर्पल पर्पल रंग के गुब्बारे आने लगे। ये देखिए कितने बड़े गुब्बारे। अब मुझे बताइए, ये खून के गुब्बारे जो खूनी बवासीर है ये तकरीबन मल द्वार तक पहुंचे। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आप देखिएगा रिकॉर्डिंग के अंदर कि बिल्कुल बाहर का हिस्सा आ जाएगा मल द्वार का। ये देखते रहे, देखिए कितने बड़े गुब्बारे, और ये हम बाहर आ गए। तो इतने बड़े गुब्बारे जो यहां से स्टार्ट हुए हैं और यहां तक आ गए हैं, आप मुझे बताएं कि ये दवाई से कैसे ठीक हो सकते हैं। एलोपैथी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि बवासीर की ग्रेडिंग कम हो जाए, कि ग्रेड 3 से ग्रेड 2 हो जाए या ग्रेड 2 से ग्रेड 1 हो जाए। और ब्लीडिंग किसी भी ग्रेड में हो सकती है, बिकॉज याद रखें ये नहीं ब्लीड करेगा, ये एक सपोर्ट के लिए, कॉन्टिनेंस के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर ग्रेड 1 भी है तो ये पाइल्स, ये जो पाइल्स है ये यहां तक बढ़े हुए हैं, तकरीबन 6 सेंटीमीटर का खून का गुब्बारा है। जब स्टूल पास होगा, फ्रिक्शन होगी, ये ब्लीड करेगा। इस ब्लीडिंग का इलाज करना पड़ेगा। ब्लीडिंग लक्षण आपके जो हैं अगर कंट्रोल हो जाते हैं ग्रेड 1, आप कंट्रोल करिए, लेकिन पहले कंफर्म करिए कि आपको बवासीर है। बगैर अपने आप को एग्जामिन कराए आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। प्लीज अपने आप को एग्जामिन कराए। हर हॉस्पिटल में जहां पे कोई सर्जिकल स्पेशलिस्ट है या किसी भी तरह की सर्जिकल फैसिलिटी है, वहां पे एक सिंपल सा वीडियो प्रोक्टोस्कोप नहीं है कोई बात नहीं, सिंपल प्रोक्टोस्कोप से भी आइडिया लग जाएगा कि बवासीर कितनी बड़ी है। और अगर बवासीर है उनके लक्षणों का इलाज कराएं। अगर लक्षण बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर लक्षण बार बार आ रहे हैं आपको, तो उसका इलाज करवाना सर्जरी द्वारा ही संभव है। बवासीर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी कॉमन प्रॉब्लम भी नहीं है जितनी आजकल लोग सर्जरीज कर रहे हैं। डायग्नोसिस, पहले डायग्नोसिस, अगर फिशर है, पॉलिप है, वॉट है, अल्सर्स हैं, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो प्लीज जब भी अगर आपको, भगवान ना करे लक्षण हो, लेकिन अगर आपको पेनलेस ब्लीडिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, दर्द होता है स्टूल पास करते हुए, तो प्लीज किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं। सिंपल सी प्रोक्टोस्कोपिक, अगर वीडियो प्रोक्टोस्कोपी हो जाए तो और बेहतर है, अदरवाइज जस्ट गेट अ प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन। डू नॉट रिस्क योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स. Do not bother whether it can be treated by medicines or surgery, because now you have non-surgical procedures which can treat piles. There is this procedure which we are performing at a center known as hemorrhoidal artery ligation. The whole procedure is practically non-surgical. It is done under anesthesia, but there is no cutting involved. There is no use of current or lasers or scissors or knife. It is a procedure which is fantastic. You don't have to call it a surgical procedure. It is as good as a non-surgical procedure, and you can get complete relief from any grades of piles. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. I shall be discussing the details of this procedure whenever we meet next. For now, my friends, I sign off by telling you that in my opinion, the medicines can only control the symptoms of the disease, but then the disease continues to progress, and higher the grade of piles, the more the suffering, the more the cost of the treatment. So we need to act early as possible. Get your diagnosis made,
and take appropriate treatment. You take treatment from whatever specialist you feel like, but please get yourself examined and confirm. Let me tell you, there are sinister diseases which may be responsible for symptoms which are just like piles. So my dear friend, do not ignore my statement. Thank you very much.